Good morning, students. Hope you understand the basic concept of interpersonal behavior. Now, how to improve the interpersonal behavior and how to make our communication very effective, there are certain techniques that we need to understand, like transaction analysis, Johari window, stroking, live position. Now, we are going to cover this one by one. With the help of this, you can analyze anyone's behavior and act accordingly. First is your transaction analysis. Transaction analysis refers to analysis of social transaction that occur between the people. It is introduced by Eric Berne in 1960. When two people interact, there is a social transaction in which one person responds to another. The study of such transaction between people is known as a transaction analysis. Basically, uh, when two people interact with each other, there is a result of social transaction. Analysis of that social transaction is called your transaction analysis. कि आप किस तरीके से जब दो जने बातें कर रहे हैं किस तरीके से वो बात कर रहे हैं आप उसके ट्रांजैक्शन जो हो रहा है जो बातें कर रहे हैं दैट इज़ अ ट्रांजैक्शन उस ट्रांजैक्शन को आप एनालाइज कर रहे हैं अंडर दिस ट्रांजैक्शन एनालिसिस बेसिकली it study the move people make in their dealing with each other and it's the base on the idea that people interact to resemble the move in the game. ओके किस तरीके से आप इंटरेक्ट करेंगे हम उस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर व्हाट एग्जैक्टली द एडवांटेज ऑफ दिस बेसिकली transaction analysis is very simple to learn and validity of transaction analysis can be demonstrated easily and demonstrate easily means हम लोग उसको कहीं पर भी दिखा सकते हैं किस तरीके से आप एक दूसरे से ट्रांजैक्शन कर रहे हो बातें कर रहे हो हम उसको easily शो केस कर सकते हैं it provide a means of for reducing the amount of bad feeling experience by an individual अगर आपको ट्रांजैक्शन एनालिसिस मालूम है किस तरीके से ट्रांजैक्शन को एनालाइज करते हैं क्या होता है तो आप बैड फीलिंग्स और ये सारी चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं यू कैन इंक्रीज द एफिशिएंसी एफिशिएंट यूज़ ऑफ टाइम ओके आप टाइम को इम्प्रूव कर सकते हैं यू कैन इट हेल्प टू प्रमोट एफिशिएंट यूज़ ऑफ टाइम हेल्प टू प्रमोट इफेक्टिव कम्युनिकेशन it also applicable at home and it is also applicable at work okay ऐसा नहीं है कि this is a technique which is applicable only in the management or workplace and it reinforce and implement other management development activities also like communication leadership management by objective conflict resolution etc it also improve your interpersonal communication your interpersonal relation it help to develop a leadership skill among the people also there are certain limitation of transaction analysis also it is difficult to understand the ego state basically the very basic of transaction analysis to understand the ego state and on that ego state basis you can analyze the transaction so it is not so easy to understand what ego state it is and some people use this tool to manipulate the behavior of other अगर आपको ये बहुत अच्छे से आता है ट्रांजैक्शन एनालिसिस आप समझ गए हैं तो आप मैनिपुलेट भी कर सकते हैं बिहेवियर को क्योंकि यू अंडरस्टैंड दैट यू आर एबल टू एनालाइज द ट्रांजैक्शंस okay and sometime it also encourage a mature behavior it apply if it apply carelessly okay now understand what exactly transaction analysis कैसे हम transaction analysis करते हैं in transaction analysis people interact with each other in terms of three psychological position हमारी तीन psychological position होती है और you can say your behavioral pattern is there which is known as a ego state हम इसको ego state कहते हैं और इन तीन ego state से जो है हम लोग किसी के साथ transaction करते हैं फर्स्ट इज़ योर parent ego second is your adult ego and third is your child ego ओके यहाँ ईगो का मतलब मैं वाला ईगो नहीं है
दिस इज द ईगो स्टेट्स. ठीक है, मीन्स द वे यू आर थिंकिंग, यू आर फीलिंग, यू आर बिहेविंग at a time. Okay, now the first you understand the parent ego. Parent ego is a taught concept. ठीक है, इट्स अ टॉट ईगो स्टेट यू कैन से, जो आपको सिखा रही है चीज़ें. इट रिप्रेजेंट बाय कंट्रोलिंग अथॉरिटेटिव बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल. जहाँ आप जैसे पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स का नेचर क्या होता है? कंट्रोल करना, अथॉरिटी दिखाना. उस तरीके का नेचर आपका होता है जब आप बात करते हैं किसी से. ठीक है, और इस तरह का जो नेचर होता है वो आप अपने पेरेंट्स, अपनी एल्डर सिस्टर, ब्रदर, टीचर, मीन्स आप अपने जो अर्ली चाइल्डहुड स्टेट होता है वहाँ से सीख के आते हैं. वहाँ आप सबको देखते हो, उसी से आप ये सीखते हैं. ओके, दिस मैसेज इज was stored as a record in the mind of an individual. मतलब ये जो पेरेंट ईगो स्टेट होती है वो आपके माइंड में स्टोर हो जाती है. ठीक है, चाइल्डहुड टाइम से. इसीलिए आप जो है पेरेंट ईगो स्टेट की तरह ही बिहेव करते. मीन्स आप जो है, आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी? ओवर प्रोटेक्टिव टाइप की, नर्चिंग है, क्रिटिकल है, या टीचिंग टाइप की, या कंट्रोलिंग टाइप की आपकी पर्सनालिटी होती है इसमें. ठीक है, और इसमें क्या है, दो टाइप की पेरेंट ईगो होती है. एक होती है नर्चिंग, एक होती है क्रिटिकल. ठीक है, नर्चिंग में क्या होता है कि इंडिविजुअल की पर्सनालिटी ऐसी होती है जो आपके थॉटफुल है, केयरिंग है. जैसे पेरेंट्स होते हैं, केयरिंग होते हैं, लविंग होते हैं, आपको सिंपैथिक एटीट्यूड रखते हैं, आपको दूसरों से बचाते हैं. उस तरीके का आपका जो है एटीट्यूड होता है. एंड गिव एडवाइस, गाइडेंस. इट ऑल्सो इंकरेज एंड सपोर्ट अदर्स. इस तरह का नेचर आप रखते हैं तो आपका नर्चिंग पेरेंट ईगो है. क्रिटिकल पेरेंट ईगो जो हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं. इट प्रोवाइड डायरेक्शन टू द अदर. आपको जो है हमेशा हुक्म दे रहे कि आप ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो. और आप जो है कंट्रोलिंग जो टाइप का बिहेवियर आपका होगा. आप रूल्स रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, तो जब आप किसी चीज़ को टोका टाकी बहुत ज़्यादा कर वाला बिहेवियर जब आपका होता है तो दैट इज एग्जैक्टली अ क्रिटिकल पेरेंट बिहेवियर. फाइन, दिस इज अ पेरेंट ईगो. Try to understand the different ego state beta. Then you are able to understand the transaction analysis. Okay. Then we have a adult ego. Adult ego refers a thought concept, or you can say thinking ego state. जैसे आपकी पेरेंट ईगो थी टॉट मीन्स समझाने वाली, बताने वाली. एडल्ट ईगो क्या है? सोच समझ के कुछ करने वाली ईगो स्टेट है. इसमें कोई इमोशन नहीं है, नो इमोशन इन दिस स्टेट. ही कलेक्ट द फैक्ट्स एंड डेटा. यहाँ पर क्या, फैक्ट्स एंड डेटा के बेसिस में ही जो इन्वायरमेंट में आपको मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने आप दिमाग में प्रोसेस करते हैं डेटा को, और उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले रहे हैं. मीन्स यू आर टेकिंग डिसीजन वेरी रैशनली. द डिसीजन टेकन फ्रॉम दिस ईगो स्टेट are very factual, based on current situation and a past experience. And this ego state can be identified by verbal, physical sign. आप कंसंट्रेशन, रियलिस्टिक डिसीजंस आप ले रहे हैं. ठीक है, और आप एक तरीके से कह सकते हो दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आर एक्वायर्ड एज वन मैच्योर इनटू एडोलसेंट या एडल्टहुड स्टेट. ओके, नॉट एक्ट इम्पल्सिवली. आप जो है बहुत ही सोच समझ के जब कोई डिसीजन लेते हैं, बात करते हैं, तो दैट इज़ अ ईगो स्टेट, adult ego state. Okay, like a student giving presentation on the project developed by him. आपने एक प्रोजेक्ट डेवलप किया, उसके बेसिस में ही आप वहाँ पर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो इट्स अ एडल्ट ईगो स्टेट. HR मैनेजर टेकिंग डिसीजन ऑफ सेलेक्टिंग और रिजेक्टिंग कैंडिडेट आफ्टर इंटरव्यूइंग हिम. यहाँ पर क्या है, बहुत सोच समझ के उसे इंटरव्यू लिया, उसके बाद ही हैज़ टेकन डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स विच इज शोन ड्यूरिंग द इंटरव्यू. कोई सिफारिश और इससे नहीं लिया है. ठीक है, तो दैट इज द रिजल्ट ऑफ एडल्ट ईगो. देन योर चाइल्ड ईगो. चाइल्ड ईगो स्टेट is associated with the behavior that appear when a person is responding emotionally. जब आप इमोशनली किसी चीज़ को लेकर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो चाइल्ड ईगो होती है. मीन्स यू हैव रिप्रेजेंट योर चाइल्डिश बिहेवियर, इमेच्योर बिहेवियर, डिपेंडेंट बिहेवियर ऑफ योर पर्सनैलिटी. ठीक है, ये आपकी चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से डेवलप होती है, जो आपकी चाइल्ड ईगो होती है. ठीक है,
आपके चाइल्ड में आप देखते हो कि बच्चों में क्या होता है, क्रिएटिविटी बहुत होती है, तो इसमें क्रिएटिविटी भी आपको दिखेगी, डिपेंडेंसी भी दिखेगी, हेट और फेयर भी दिखेगा। ठीक है। अ पर्सन कंटेनिंग चाइल्ड ईगो दैट नेचुरली impulses an attitude learned from their child experience and behavior like laden with emotions आप हैं, insubordination है, joy है, creating the thing। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी चाइल्ड ईगो में नज़र आती है। आप देखते हैं जैसे कहते हैं बच्चों की तरह बिहेव मत करो, ठीक है, जहाँ आप इमेच्योर बिहेवियर करते हैं, तो वो हमारा चाइल्ड ईगो से स्टेट होता है। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट पेरेंट ईगो रिप्रेजेंट टॉट, जो पेरेंट्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, एडल्ट जो सोच समझ के बिहेव करते हैं, चाइल्ड ईगो जो चाइल्डिश तरीके से बिहेव करते हैं। ओके, नाउ दीज आर द थ्री ईगोज। Then there is a three part of the child ego: natural, adaptive and rebellion। देखिए, नेचुरल चाइल्ड मीन्स हो गया अफेक्शनेट, इम्पल्सिव, बिना सोचे समझे स्पॉन्टेनियसली आपके सामने कोई बिहेव अगर करे, जॉयफुल हो, जैसे बच्चे करते हैं। अडेप्टिव मीन्स अडेप्टिव चाइल्ड इज ट्रेन्ड वन, ही इज़ लाइकली टू डू व्हाट पेरेंट इंसिस्ट, जो पेरेंट्स कहते हैं उस तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। ही एक्ट एज अ पेरेंट एक्सपेक्टेशन। एंड रिबेलियस होते हैं जो गुस्से वाले, फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री टाइप के बच्चे होते हैं। ठीक है, तो उस तरीके की चाइल्ड ईगो होती है। नाउ अब आप देखिए इन शॉर्ट में क्या है आपकी कैरेक्टरिस्टिक। पेरेंट ईगो, लॉ, डू नॉट कहने वाले, ट्रूथ, ट्रेडिशन, टीचिंग, डेमोन्स्ट्रेटिंग, ये सारी चीज़ें जिनके अंदर होती हैं। एडल्ट मीन जो रैशनली सोच रहे हैं, स्ट्रॉन्ग डेटा एक्सप्लोरिंग कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, देन आफ्टर टेकिंग डिसीजन। चाइल्ड ईगो मीन्स सुनकर, टच करके एक्सपीरियंस लेते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, ठीक है, और अंदर से सोचते हैं, इमोशनल होते हैं। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्री ईगो स्टेट। नाउ टू अंडरस्टैंड द ट्रांजेक्शन एनालिसिस, अब आप देखते हैं कि हम ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू बर्ने, पीपल इंटरैक्ट विद ईच अदर फ्रॉम द चाइल्ड, एडल्ट एंड पेरेंट ईगो स्टेट। हम जब एक दूसरे से बातें करते हैं तो हम लोग चाइल्ड, एडल्ट या पेरेंट ईगो में से कोई एक ईगो स्टेट को फॉलो करते हैं। ठीक है। तो ट्रांजेक्शन एनालिसिस प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल रिलेटेड टू ईच अदर। It is useful tool for helping people to understand and improve their interaction। जब आपको ये तीनों ईगो के बारे में मालूम है तो आप समझ सकते हैं कि सामने वाला किस ईगो स्टेट से बात कर रहा है, तो आपका जो रिलेशन है वो इम्प्रूव होता है। ठीक है। आप बेफालतू में गुस्सा नहीं करते, ना कोई आपकी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होती। इफ़ यू अंडरस्टैंड द ईगो स्टेट, इंडिविजुअल कैन डिसाइड हाउ एनी ट्रांजेक्शन शुड डेवलप, कैसे ट्रांजेक्शन डेवलप होगा। दैट कैन ऑल्सो बी एनालाइज विद द हेल्प ऑफ दिस। देखिए, ट्रांजैक्शन कैन बी अ थ्री टाइप: कॉम्प्लीमेंट्री, क्रॉस and ulterior transaction. Fine. And we will going to cover this type of transaction in next class. So till today you have to understand the three ego state very clearly. Okay. With the help of this three ego state, you come to know how transaction take place। और जो भी ट्रांजैक्शन हम दो जनों के बीच में या बातें करते समय आप लोगों के बीच में होता है, वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है, या क्रॉस्ड हो सकता है, या अल्टीरियर हो सकता है। ओके, ये हम आपका कल कवर करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।